हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के 2015 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2019 सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the set says that Divya grew up in a business family in Hyderabad. As a systems engineer, she traveled extensively on business deals and later settled in her in-laws' place in Warangal. Once during her visit to Thailand, she got to taste some roll-over ice cream. Interestingly, a few weeks later, she came across an advertisement from a reputed Bangalore-based rollover handcrafted ice cream company calling for expression of interest from potential franchises. Warangal did not have any quality ice cream parlor. The company wanted the potential franchises to invest rupees 20 lakhs in 700 square feet space. Profits were to be shared 3:7 ratio between company and the franchise. तो मतलब दिव्या जो है, फर्स्ट पैरा का ये है कि भाई दिव्या जो है वो एक बार सिस्टम्स इंजीनियर है, इसलिए बहुत बिजनेस डील की वजह से घूमना पड़ता है। वो एक बार घूम रही थी तो रोल ओवर आइसक्रीम जो है वो उन्होंने खाई, उनको अच्छा लगा। फिर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, वरंगल में बहुत सारी क्वालिटी आइसक्रीम पार्लर है नहीं, और एक कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती है 20 लाख एंड 700 स्क्वायर फीट स्पेस पे। प्रॉफिट जो है वो 3:7 के रेशियो में कंपनी और फ्रेंचाइज के बीच में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, फ्रेंचाइज खोल सकती है दिव्या के लिए। सेकंड पैरा देखते हैं। दिव्या वॉज एक्साइटेड but was wondering if rupees 20 lakh was too much to invest. Further, she did not have the entire amount and was thinking of taking a loan. She inquired with rollover franchises and found that a franchise in Hyderabad had sales revenue varying between 5 and 6 lakh rupees per month with a profit margin between 25 to 30%. Divya decided to go ahead. भाई मतलब दिव्या एक्साइटेड तो थी, बट ये है कि भाई उसको ये भी पता था कि 20 लाख रुपीस जो है बहुत ज़्यादा है इन्वेस्ट करने के लिए, और उनके पास इंटायर अमाउंट है भी नहीं, तो उनको लोन लेना की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उन्होंने हैदराबाद के एक फ्रेंचाइज से इंक्वायर किया, तो उन्होंने बताया कि भाई 5 to 6 लाख पर मंथ हम लोग कमा लेते हैं, जिसमें हमारा प्रॉफिट 25 to 30% होता है, राइट। तो 1/4 ऑफ 6 लाख यानी 1.5 लाख के आसपास का जो है वो प्रॉफिट बना लेते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। Warangal had three main areas: Kazipat, Jangaon, and Warangal. All areas were linked by good roads. Kazipat was a business area where most high-end retail formats were located. It was also the education hub in the city. Jangaon, on the other hand, was a growing lower middle class business area, and Warangal was mostly residential. तो ठीक है, तीन जगह है यहाँ पे, काजीपट, जंगांव और वरंगल। और इसमें क्या है कि काजीपट सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, इसको एजुकेशन हब भी बोला, एजुकेशन हब है सिटी का। तो इस एरिया में बहुत सारा डेवलपमेंट है। जंगांव डेवलपिंग है, डेवलप हो रहा है अभी, और वरंगल में मोस्टली रेसिडेंशियल एरिया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मतलब अगर आइसक्रीम के हिसाब से देखें तो वैसे काजीपट में बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत सारे लोग जो है ऐसे मिलेंगे जो शायद खा ले, क्योंकि एजुकेशन हब है तो बच्चे वहाँ होंगे ही। खैर, फोर्थ पैराग्राफ को देखते हैं। दिव्या फेवर्ड काजीपट, हाउएवर शी सून encountered problems. Not only was it difficult to obtain space in Kasipat, but property rentals touched 30 to 40 rupees per square feet per month, as against Jangaon and Warangal where it was 15 to 20 rupees per square feet per month. तो मतलब ऑब्वियसली मतलब काजीपट जो है वो ज़्यादा महंगा था, इट वॉज 30 to 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पर मंथ, और जंगांव और वारंगल जो थे वो 15 to 20 रुपीज़ ही थे। ठीक है, Divya's friend who lived in Jangaon told her that a few branded outlets were opening in Jangaon and it appeared to be fastest growing market in Warangal with the highest percentage of teenagers. But Divya was not in favor of Jangaon. She hoped to target college going crowd of Kazipet. High real estate prices in Kazipet and lower profitability estimate in Jangaon मार्केट कंफ्यूज्ड दिव्या। ठीक है, तो काजीपट में ऐसा है कि भाई रियल एस्टेट के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, और जंगांव पे जो है थोड़ा लो प्रॉफिटेबिलिटी का एस्टिमेट है। ये दोनों चीज़ों की वजह से जो दिव्या है वो कंफ्यूज हो गई है कि भाई मेरे को किस तरफ जाना चाहिए, शुड आई गो विद के और शुड आई गो विद जे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इफ ट्रू वुड मोस्ट लाइकली इंटरेस्ट दिव्या टू स्टार्ट अ फ्रेंचाइज। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जो दिव्या को मतलब फ्रेंचाइज स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट करे। तो बेसिकली दिव्या का सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे जो हमें पढ़ के लग रहा है वो ये है कि उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो नहीं चाहिए, मतलब उसको चाहिए प्रॉफिट्स।
इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि भाई मेरे को प्रॉफिट कमाना है। अभी मैं जे की तरफ जाती हूँ तो मेरे को सिर्फ 15 से 20 रुपीज मिल रहे हैं, और के की तरफ जाती हूँ तो 30 से 40 मिल रहे हैं। बट प्रॉब्लम इज इधर हाई प्राइस है, इधर लो प्राइस है, ठीक है। तो वो अभी इस वजह से कंफ्यूज्ड है। इसको फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल बनाना अपने बिजनेस को, ये इसका सबसे बड़ा कंसर्न है। तो अगर दिव्या को फ्रेंचाइज स्टार्ट करने वाला ऑप्शन ढूंढना है हमको, तो वो ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जो फाइनेंशियल प्रॉफिट्स की बात करे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ऑफ द एरिया डू नॉट कंसिडर आइसक्रीम टू बी मेजर कॉज ऑफ ओबेसिटी। ये दिव्या का कंसर्न है नहीं, दिव्या का कंसर्न है फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, कितना रेंट देना पड़ेगा, कितनी आइसक्रीम बिक जाएंगी, कितना मैं प्रॉफिट कमाऊंगी। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स है, इसका कोई लेना देना नहीं है दिव्या के कंसर्न से। बी, अ बैंक इज रेडी टू गिव हर अ क्विक लोन। लोन उसको मिल जाएगा, उसको पता है कि उसको लोन लेना ही पड़ेगा, तो क्विक लोन लेने की वजह से वो इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेगी कि मुझे लोन मिल रहा है तो फ्रेंचाइज स्टार्ट कर दूं। उसका मेन कंसर्न ये है कि भाई मैं लोन लेके इन्वेस्ट तो कर दूंगी, बट क्या मुझे उस इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उसका मेजर कंसर्न है। तो ये ऑप्शन भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी इसको अभी के लिए रखते हैं, आगे देखते हैं। शी कैन चार्ज हाई प्राइसेस फॉर हर आइसक्रीम विदाउट लूजिंग कस्टमर्स। भाई ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी से बहुत ज्यादा बेटर है। उसका प्रॉब्लम ही यही था कि उसको प्रॉफिट चाहिए। अगर हाई प्राइस पे आइसक्रीम बेचेगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेगी, और वो बोल रही है हाई प्राइस पे बेचेगी और कस्टमर्स भी नहीं जाएंगे। तो मान लो कि वो 100 कस्टमर्स अगर आते हैं उसके पास डेली बेसिस पे, तो और अगर आप एक आइसक्रीम का प्राइस 10 रुपीज है, तो मतलब वो 1000 रुपीज कमा लेती अगर वो कम में बेचती। लेकिन ये बोल रहा है हाई प्राइस, यानी इसको अगर वो 20 भी कर दे और कस्टमर्स नहीं जाएंगे तो जस्ट डबल कमा रही है ना वो। तो ये तो बहुत अच्छी चीज होगी उसके लिए, प्रॉफिट बढ़िया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अभी तक का बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, आगे देखते हैं। हर फ्रेंड हु रन्स अ रेस्टोरेंट रिसेंटली इन काजीपट इज डूइंग गुड बिजनेस। ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं ना, इस पे आप ध्यान देना कि अगर कोई चीज ए में हो गई है या ए के लिए हो गई है, तो वो बी के लिए भी हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये ट्रू नहीं है कि अगर किसी और जगह किसी के लिए कोई चीज चल गई, कि भाई कोहली जो है वो आके वो तो सेंचुरी बना रहा है, तो हर प्लेयर आके सेंचुरी मारेगा, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हमेशा कभी भी ऐसा ऑप्शन आपको दिखे कि यार वहां पे ये हो गया था इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा, मोस्टली दे आर नॉट दी आंसर्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ई, इन रीसेंट टाइम्स अ कपल ऑफ फ्रेंचाइजीज शट डाउन विद इन मंथ ऑफ स्टार्टिंग। भाई ये तो बिल ऑपोजिट बात कर रहा है, हमको तो उसको मोटिवेट करना है फ्रेंचाइज खोलने के लिए, इससे तो वो फ्रेंचाइज खोलने के लिए कभी रेडी नहीं होगी। ऑप्शन ई भी आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 7 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशन।